Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine and enjoying vacations, not only with playing but also in studies. Don't waste your time and take your lectures on daily basis. Do you know your lectures has been started of third term via Zoom app, and your attendance is compulsory in your lecture. Okay, and I have given to you information to your parents through calls, but I am informing you through this lecture that we are going to celebrate science exhibition from class 1. Okay, from class onwards, class 10th, and you will be participating in your projects with the help of your ma'ams. Okay, and we are going to celebrate event of speech and debate competition when you will come back to school, and speech and debate competition will be onward class 3, and we have given topics of speeches to the students and they will prepare. Now we come to our lecture, and we will give to you notes of third term via WhatsApp, and we will give to you hard copy as well, and we will inform to you when we will give. Okay, and this is your science book. It is the lecture of 2 class subject science, or it is the lecture number 1. Today is your first lecture, and it is your science book. Open your science book, page number, first of all we can see contents. These are the contents, and we divided these contents in 3 terms: first term, second term, and third term. First term you have completed, and second term also you have completed. Now we come to third term, and your third term lecture will be started from 10 unit, chapter number 10. Okay, unit number 5, space and environment, and chapter number 10, and we oftenly focus on chapters. Okay, chapter number 10, air. Have you opened the books? Page number 72. Page number 70. Open page number 70. And what is air? Air क्या होती है? Air, can you see air? No, we cannot see air. We just feel it. When air is blowing, it touches our face, it touches our body, and we feel it. We cannot see the air. And you can see this picture. We feel that air is blowing, and branches of trees are moving, that tell us air is blowing. And you can see in your book, page number 70, warm up. Every chapter has this activity, warm up activity, and you can fill these boxes with spelling of air. A-I-R, air. This is the picture of tree. It tells us that air is blowing, and look at this kid. He is sailing the boats in the river,
and you can see wet clothes are drying in air, and you can see this girl, air is blowing fastly and her clothes and caps is flying in the air. And look at this picture, curtain of the window is flying due to air. These pictures, all these pictures are telling us that air is blowing. इन सब पिक्चर से हमें ये पता चल रहा है कि हवा जो है, एयर जो है, हवा चल रही है, एयर इज ब्लोइंग. एयर, वेयर इज एयर? एयर कहाँ होती है? एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर कहाँ होती है? लुक एट दिस, एयर इज ऑल अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द होती है एयर, बट वी कैन नॉट सी इट. We cannot see air, but we can feel it when it moves. अगर हवा नहीं चल रही, when it is not blowing, everything is still. कोई भी चीज़ मूव नहीं करती, हर चीज़ अपनी जगह पर रहती है, तो उस वक्त हवा नहीं चल रही होती. If you blow air into a balloon and then release the opening near your face, you can feel air gushing out of the balloon. जब आप इसकी रीडिंग करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि इसमें से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स आपको मैं साथ बताती जाऊंगी. गशिंग आउट का मीन है कि सडनली एयर जो है वो निकल जाती है बलून से. अचानक से जब हवा बलून से निकलती है तो उसकी एक वॉइस भी आती है जो वॉयलेंट होती है. ठीक है, वो उस वॉइस को और उस हवा के निकलने को गशिंग आउट कहते हैं. एंड लुक एट योर बुक्स. एयर हैज मैनी गैसेस. व्हाट डज एयर कंटेन? एयर हैज मैनी गैसेस. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर important gases in air. Oxygen, carbon dioxide and nitrogen are the names of gases which contains air. Air has water vapors also. When we heat water, it changes into steam. You can see in the home to your mother that when she cooks something, she cooks tea. You can see her. You can see the pot. Steam comes out from the water when water heats, and steam called water vapors. This steam is called water vapors. When we clothes are hung, they dry up after some time. Where does the water go? The heat of the sun changes the water into water vapor. This mixes with the air. Look at these cloths. You can see these wet cloths are hung, and the sunshine dried it. The sunshine will dry it, and not in the winter, just in the summer. विंटर में तो देर से जो है ड्राई होते हैं ना क्लॉथ्स, बट समर में वो जल्दी ड्राई होते हैं बिकॉज जो सनशाइन है वो बहुत हॉट होती है, इसलिए. Similarly, water from ponds, then page number 71. Similarly, water from ponds, lakes, rivers and seas is turned into water vapors by the heat of sun. And what is the pond? Pond is the small area of water. It is oftenly in the parks and sometimes in the homes also. And lakes is the big area of water surrounded by land. इसके इर्द गिर्द जो है वो ज़मीन होती है और ये थोड़ा सा बड़ा होता है. जो लेक होती है उसको उर्दू में झील भी कहते हैं. रिवर्स, यू ऑल्सो नो रिवर दरिया होता है. एंड सी, समंदर, इज टर्न इनटू वाटर वेपर बाय द हीट ऑफ सन. जब इन पर सनशाइन होती है, आती है, तो यहाँ से भी जो है वाटर ऊपर जाना शुरू हो जाता है. स्टीम बाय वाटर वेपर्स, स्टीम बनकर.
जो हमें नज़र नहीं आता। उस वक्त हम उनको जब हम नीचे फ्लेम ऑन करते हैं फिर तो हमें नज़र आता है ना, थोड़ा सा वाटर होता है, उसके वाटर वेपर्स हम देख सकते हैं, बट ये तो बहुत ज़्यादा एरिया होता है वाटर का, रिवर्स का, लेक्स का और सीज़ का, तो इनको फिर नहीं हम देख सकते। इट कैन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एयर, फिर ये एयर का हिस्सा बन जाते हैं। एयर हैज़ डस्ट पार्टिकल्स व्हेन सनलाइट कम्स इनटू द रूम थ्रू अ स्मॉल शॉक गैप। जब आप अपने रूम की थोड़ी सी विंडो ऑन करके देखें और वहाँ से सनशाइन आ रही होती है, वी कैन सी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर। व्हेन द विंड ब्लोज इट कैरीज डस्ट पार्टिकल्स विद इट। इवन व्हेन वी स्वीप आवर हाउसेस और रोड द डस्ट पार्टिकल्स मिक्स विद एयर। आपको पता है ना कि जब आप विंडो ओपन करें, थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट ये कर भी सकते हैं। व्हेन यू ओपन द विंडो ऑफ योर रूम देन स्मॉल पार्टिकल्स आर कमिंग टू यू, और उस वक्त हमारा दिल भी नहीं चाह रहा था, वही हमारा नहीं दिल चाह रहा था कि हम वहाँ पर सांस भी लें। वी कैन नॉट ब्रीथ, बट हम लेते हैं सांस, और हमें बाकी जगह पर तो नज़र नहीं आ रहे होते ना डस्ट पार्टिकल्स, लेकिन वो एयर में मौजूद होते हैं हर टाइम। एयर है स्मोक, एयर में स्मोक भी होता है। व्हेन यू कम टू स्कूल you can see transport, buses, vans, rickshaws, and you can see their sluncers back of the vehicle. You can see smoke comes out from the sluncer of the vehicle. Our lungs need fresh air, and this makes the air impure. These स्मोक पार्टिकल्स मेक्स द एयर इम्प्योर। जो इम्प्योर का क्या मीन होता है कि ये हवा को क्लीन नहीं रहने देते। आवर लंग्स नीड फ्रेश एयर टू रिमेन हेल्दी। हमारे लंग्स को तो फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है ना, तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। जहाँ पर स्मोक हो, और व्हीकल्स जिनके पास हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने व्हीकल्स को परफेक्ट रखें ताकि उसमें से स्मोक ना आए बाहर, और ये डिजीज़ का बायस बनता है। एयर कैरीज जर्म्स, टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड जर्म्स। जर्म्स क्या होते हैं? टाइनी लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि हवा में मौजूद होते हैं। व्हेन पीपल कफ और स्नीज विदाउट कवरिंग देयर माउथ द जर्म्स फ्रॉम देयर बॉडी कम आउट एंड मिक्स विद एयर। These germs enter our body through breath and we fall sick. अब आपको तो ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है, do you know it very well that corona disease is due to cough or sneeze, and it is due to not washing our hands, means germs। हमारे hands पे germs होते हैं, और when we cough or sneeze we must cover our mouth, we must cover our nose and wash our hands regularly. These germs enter our body through breath and we fall sick. So everyone should cover their mouth while coughing or sneezing. ये germs इतने small होते हैं कि हम उनको we cannot see them. We can see just from microscope. It is the machine which we can see through. We can see germs through this machine. It is called microscope. Look at this carefully. We can see germs through microscope because these are tiny particles. A microscope is an instrument which makes tiny things appear big so that we can easily see them. जब हम इसमें से देखते हैं तो वो जो tiny things होती हैं वो big नज़र आती हैं। Okay, now page number 72, we need clean air. Everyone know that we need clean air for our health. It is very necessary for our health. Dust, smoke and germs make the air impure. Breathing impure air makes us ill. Plant जो है unclean air है, जो impure air है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? To get clean air we must plant more trees, and you know very well we oftenly celebrate the plantation day in our school, and we
we bring plants from your homes and we planted in soil in our school. Keep the windows open to let in fresh air. विंडोज़ को ओपन रखा करें। जब हम होम में होते हैं तो कर्टन्स होते हैं, कारपेट्स होते हैं, तो उसके लिए विंडो को ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है। प्ले इन ओपन प्लेसेस बट नॉट इन विंटर, जस्ट इन समर। समर में आपने बाहर प्ले कर सकते हैं, लेकिन विंटर में मॉर्निंग एंड इवनिंग में अवॉइड करना चाहिए। नॉट ब्रीथ इन द स्मोक दैट पीपल रिलीज वाइल स्मोकिंग। इफ़ एनीवन स्मोक्स इन योर हाउस, यू don't sit with near them. If your father or your brother, anyone smokes, then you forbid her or him, forbid him. आपको उसको मना करना चाहिए कि आपने उसको कि स्मोकिंग जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है, वो हमारे लंग्स को डैमेज कर देती है। Use a handkerchief to cover your mouth. Use tissue or handkerchief to cover your mouth. Okay, and follow these instructions carefully. Now we can see fill in the blanks, and we fill it on the board. Fill in the blanks. You can fill it with me on your book. एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी, अभी हमने रीड किया है। एयर किस चीज़ का मिक्सचर है? मैनी गैसेस। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। कौन कौन सी गैसेस थी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड carbon dioxide. Air contains water vapors. एयर में क्या क्या होता है? वाटर वेपर होते हैं। और एयर में क्या होता है? कौन से पार्टिकल्स होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स। एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। वी नीड डैश टू ब्रीथ। हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए होती है? एयर। अगर हमें किसी रूम में बंद कर दिया जाए और वहाँ पे कोई विंडो भी ना हो, डोर भी ना हो, और वहाँ पर एयर भी नहीं होगी, जाहिर है एयर कहाँ से आएगी जब डोर भी नहीं होगा, विंडो भी नहीं होगा, किसी ऐसे बॉक्स में हमें बंद कर दिया जाए तो फिर वी विल डाई, वी कैन नॉट लाइव। व्हेन एयर मूव्स जेंटली इट इज़ कॉल्ड। अच्छा, जब एयर जो है वो क्या होती है? एयर टेक्स अप स्पेस। एयर जब आहिस्ता से चलती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्रीज। इसकी स्पीड्स होती हैं एयर की, डिफरेंट स्पीड्स होती हैं। तो जब एयर आहिस्ता से चलती है, जेंटली चलती है, तो उससे हम कहते हैं ब्रीज। अ फैन मूविंग एट अ लो स्पीड गिव्स अ जेंटल ब्रीज। अब आप सीलिंग फैन लेने या पेडिस्टल फैन लेने, अगर हम उसको लास्ट पे कर दें, स्पीड उसकी लास्ट नंबर पे करें, तो वो स्लो उसकी एयर जो होगी वो उसकी स्लो स्पीड की वजह से कम होगी। तो अगर हम उसको फुल कर दें तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, उसकी हवा भी तेज़ हो जाएगी। व्हेन एयर मूव्स फास्ट इट इज़ कॉल्ड विंड। तो उसे विंड कहते हैं। विंड मेक्स डस्ट, बिट्स ऑफ पेपर एंड ड्राई लीव्स फ्लाई। ये जब विंड होती है तो ये लीव्स जो होते हैं और पेपर्स होते हैं, ये उनको उड़ा देती है। आपने अक्सर देखा होगा आपके घर में भी, जब आपके घर में अगर ट्रीज़ हैं तो आप जब तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है? लीव्स नीचे गिर जाते हैं। ये अक्सर समर में होता है, जब जिसे हम आंधी कहते हैं। वो आंधी तो नहीं होती, तेज़ हवा को विंड जो है वो आंधी नहीं होती, वो स्टॉर्म होता है। लेकिन जब तेज़ हवा चलती है तो जो लीव्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जब बहुत तेज़ हवा चलती है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड स्टॉर्म। उससे वो जो आंधी होती है समर में, उसे स्टॉर्म कहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? इट मेक्स डोर्स एंड विंडोज बैंग लाउडली।
बैंग का मतलब होता है वो बजते हैं जब बहुत तेज़ हवा चलती है। तो हम उनको जब हमें पता चलता है कि आंधी आ रही है, हम जल्दी जल्दी से डोर भी बंद कर देते हैं और विंडोज़ भी जल्दी जल्दी क्लोज कर देते हैं ताकि आवाज़ नहीं आए। टीन रूफ्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स फ्लाई अराउंड, और भी बहुत सारी जो जिनकी जो सीलिंग्स हैं वो टीन की होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। वी शुड स्टे सेफली इनसाइड द हाउस ड्यूरिंग स्टॉर्म। जब स्टॉर्म होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने रूम में ही रहना चाहिए। नाउ वी कैन सी व्हेन एयर मूव्स जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज। ब्रीज इज कॉल्ड gently moving gently air. When air moves fast it is called wind. When air moves strongly it is called storm. You can fill on your book. And air has weight also, and air has space. Take a balloon, blow air into it, you will see that more and more air gets filled in the balloon. I have balloon. Look at this balloon and we can see how many space it takes. It takes a little space, and we can see this balloon filled with air, and we can see how many space it takes. You can see it takes many space. This is the difference between them. It balloons without air and this balloon with air. Then you can see air can take space, and air has also weight. This activity you can do at home. Take two balloons and inflate them. Attach a piece of string to each balloon, then attach the other end of each string to the two ends of a ruler. अब आप ये देख सकते हैं ये रूलर पर टू बैलून्स हैं, दोनों एयर से फिल्ड हैं। अगर हम एक बलून की एयर को निकाल देंगे तो क्या होगा, दूसरी साइड है जिसमें बलून विद एयर है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें वेट है, उसमें हवा है, एयर है, तो वो वेट है, उसमें एयर है। तो ये क्या इससे प्रूव होता है, इट प्रूव्स एयर हैज वेट। You can do this experiment in your home. And now page number 74, wind can move things. Wind carries small needs to new places. You can see these pictures. क्या होता है इसमें, विंड जो है वो क्या करती है, सीड्स जब फार्मर्स गिराते हैं फील्ड में तो वो उड़ जाते हैं हवा से। विंड मूव सेल बोट्स, और सेल बोट्स भी हवा जो है, तेज़ हवा जो है वो सेल बोट को भी मूव करती है। विंड मेक्स क्लाउड्स मूव, क्लाउड्स भी विंड की वजह से मूव करते हैं। विंड पुशेस द वाटर इन द रिवर एंड सीज द कॉजेस वेव्स। और आपने सी जो है उसमें समंदर में आपने देखा होगा, अगर आप गए हैं हमारे कंट्री में, कहाँ पर है सी, इट इज़ इन कराची एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टू सी द सी, बट आई can't go. And if you see this, that you can see there is wind pushes the water in the rivers. Wind makes the fan of a windmill. It is windmill इसके क्या होता है, विंडमिल जो हवा से, ये देखें हवा से इसके फैन जो है वो मूव करते हैं, एंड इसका क्या काम होता है, ये वाटर को पंप करता है और ग्रेन्स जो होते हैं उनको ग्राइंड करता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। एंड विंड वेन, लुक एट दिस विंड वेन क्या करती है, ये
टेल द डायरेक्शन ऑफ द विंड। इसका जो फेस है ना कॉक का, ये उस तरफ हो जाता है जिस तरफ जो हवा चल रही होती है, तो हमें पता चल जाता है कि हवा की डायरेक्शन जो है वो एयर की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब ये नीचे जो है आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट है 75 पेज फिल इन द ब्लैंक्स हैं विद करेक्ट ऑप्शन। यू कैन रीड द लेसन एंड यू कैन ऑल्सो फिल दिस फिल इन द ब्लैंक्स बाय योरसेल्फ एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग ऑप्शन and notes will be WhatsApp to you. Okay, and next है 76 page, answer these questions. These are also the notes in the notes. And next है task, you can do it by yourself. It is very easy. task में क्या होता है, ये जो words ऊपर दिए गए हैं आपने इन वर्ड्स को इसमें से फाइंड आउट करना है और फिर आपका जो है हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगी, उसको सर्कल लगाना है आपने फाइंड करके वर्ड्स को। एंड इट इज़ योर होमवर्क ऑफ टुडे। रीड चैप्टर नंबर 10 प्लस लर्न फिल इन द ब्लैंक्स पेज 72 74 प्लस exercise page 72 plus 74 plus exercise A plus B plus C part from page 75 76 and task. Okay, when you read the lesson you can do all these things, but we will WhatsApp the notes to you and give you a hard copy. Okay, do your homework in this week. It is your weekly homework. And I will ask you about your homework in my next lecture. Okay? Take care of yourself and your family. Allah Hafiz.